Hello everyone, welcome to Any Classes. So in last video we have covered हमने exercise 10.1 की थी. Now I will do the second theorem जो कि है सर्कल से रिलेटेड अगेन और अगेन ये भी हमारे टेंजेंट से रिलेटेड है. सो इस थ्योरम को हम देखेंगे, इसकी स्टेटमेंट आप देखिए किस तरह से आएगी और किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे. वी विल सी राइट नाउ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन द स्टेटमेंट. सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके सामने. तो स्टेटमेंट क्या कहती है? दिस इज योर थ्योरम 2 of this chapter. Okay, so theorem says tangents drawn from same external points are equal. Tangents drawn from same external point are equal. Okay, so first of all we will write the given. So in the given, what is given to us? Tangents जो कि एक ही पॉइंट में से ड्रॉ है. सो आई विल मेक अ सर्कल, क्योंकि टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा सर्कल पे बनाते हैं. सो आई विल मेक अ सर्कल विद सेंटर O. सो दिस इज योर सर्कल विद सेंटर O एंड टेक अ पॉइंट से P विच इज एक्सटर्नल टू सर्कल. ओके, सो दो टेंजेंट्स बना दिए मैंने यहाँ से. सो पहला टेंजेंट है हमारे पास PA एंड सेकंड वन इज PB. नाउ व्हाट आई नीड टू प्रूव दैट दिस PA इज इक्वल टू PB. ओके, so join this one. Okay, so first of all write down given a circle with center O, a circle with center O, PA and PB are two tangents. PA and PB are two tangents. Okay, next what we need to prove PA equal to PB, this we have to prove. Okay, so I will do construction here. So construction में what you will do, join OP. Okay, जैसे हमने OP को join किया, we will find two triangles, that is this one and this one. Okay, that is triangle OAP and triangle OBP. ठीक है, दोनों को अगर congruent prove कर देते हैं तो then by CPCT हमारे पास PA equal to क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा. ठीक है, so this is the logic for this theorem. So first of all I will take two triangles, that is, so write down proof part. In triangle, first one is OAP. This is above one wala. OAP. Make sure the order. And second one is triangle OBP. Okay. So first thing is that OA equal to OB. Why? Radii of same circle. So OA equal to OB. Reason will be radii of same circle. Same circle. Next. OP equal to OP. Why? Because it is common. And last one is this angle is equals to this angle. ठीक है, remember previous theorem में हमने क्या प्रूव किया था कि radius at the point of contact is perpendicular to the tangent. तो simply OA जो होगा वो perpendicular होगा PA पे, similarly OBB होगा perpendicular PB पे. ठीक है, so write it down. Angle OAP equal to angle OBP. So reason will be 90 degree each. ठीक है, अब देखिए 90 के सामने वाली साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज यू हैव टेकन, साइड यू हैव टेकन एंड 90 डिग्री. तो RHS, सो बाय RHS concurrency, remember this thing, it's a concurrency not similarity. Okay, so by RHS concurrency, triangle OAP is concurrent to triangle OBP. So therefore by CPCT PA equal to PB, and with this we have completed the proof. So hence proved. तो I hope ये थ्योरम आपको काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी भी लगी होगी, क्योंकि इसमें जस्ट यू हैव यूज्ड सिमिलैरिटी, सॉरी कॉन्करेंसी ओवर हियर. सिर्फ कॉन्करेंसी हमने यूज़ की है एंड बाय CPCT वी हैव प्रूव्ड दैट बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल. सो वंस अगेन आई विल रिपीट दिस थ्योरम. तो हमारे पास क्या था? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. सो मैंने एक सर्कल लिया जिसमें हमने दो टेंजेंट्स बनाए. कहाँ से? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से, दैट इज योर PA एंड PB. नाउ दोनों को हमने इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन की, सिंपली ज्वाइन कर दिया किसको? OP को. जैसे आपने OP को ज्वाइन किया, यू विल फाइंड टू ट्राइंगल्स, दैट इज OAP एंड OBP. दोनों को वी विल प्रूव देम एज इक्वल. तो उसके लिए मैंने कॉन्करेंसी लगाई इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP. दोनों में पहले OA इक्वल टू OB. वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, एक ही सर्कल के दोनों रेडियाई हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. नेक्स्ट OP इक्वल टू OB. वाई? कॉमन आ रही थी दोनों में. Next and last thing, OAP equal to OBP. Why 90 degree each? Because we have studied radii at the point of contact is perpendicular to the tangent. तो by RHS concurrency, क्यों RHS क्यों लगी हमारे पास?
क्योंकि हमने क्या लिया है, राइट एंगल लिया है, देन हमने हाइपोटेनस लिए, देन हमने साइड लिए। तो बाय RHS ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, तो बाय CPCT PA इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, PB हो जाएगा। तो आई होप ये थ्योरम आपको काफ़ी सिंपल और अच्छे से समझ आ चुकी होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो मेक श्योर करिएगा आपको ये थ्योरम आनी चाहिए, और उससे जो पहले वाली थ्योरम थी सर्कल की वो भी आपको आनी चाहिए। बोथ आर इन योर सिलेबस, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2, क्योंकि हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ने थे हमने सारे वो पढ़ चुके हैं। सो अभी हम 10.2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके सो वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर थ्योरम 10.2। सो अब हम एक्सरसाइज 10.2 हमारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 10.2 वी विल स्टार्ट राइट नाउ, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, this is your MCQ and a figure is not given to you. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25. From a point, so you have to make a circle. तो हमें एक सर्कल बनाना है, ठीक है, और एक पॉइंट लेना है Q, ठीक है। यहाँ सेंटर ले लिया O, ठीक है। अब Q से हमने दो टेंजेंट बनाए, ठीक है। एक बनाया हमने यहाँ की तरफ और एक बनाया हमने यहाँ की तरफ, ओके। सो कहता है इसको ज्वाइन कर लो इसके साथ, and you know that radius at the point of contact is perpendicular, तो 90 आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। अब बोलता है यहाँ पे the length of the tangent is 24, तो ये हमारे पास अगर A है ये B है तो हमारे पास टेंजेंट है 24 सेंटीमीटर। तो यू नो अभी मैंने थ्योरम थोड़ी देर पहले प्रूव की थी कि दोनों के दोनों टेंजेंट्स फ्रॉम दी सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल होंगे, तो दोनों के दोनों 24 के बराबर होंगे। नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, तो सेंटर को ज्वाइन कर लो इससे, तो आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। नाउ यू नीड टू फाइंड द रेडियस, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, पाइथागोरस लगाओ, OB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। तो यहाँ से OB स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास, OQ स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर। OQ कितना है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 यू नो 625 होता है, और 24 स्क्वायर यू नो 576 होता है। दोनों को माइनस कर लीजिए, यू विल गेट 49 एंड यू नो रूट 49 विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रेडियस होगा वो कितना रहेगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ आंसर 1, ठीक है। सो सिंपली यू नीड टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता लगता है कि रेडियस कितना आएगा हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इन फिगर 10.1, सो फिगर इज गिवन टू यू, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से फटाफट फिगर बना के मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आपके दो रेडियस है और ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट आ गया T, ठीक है। Now what is given to you, TP and TQ are two tangents drawn from same external point T, ठीक है। You need to find angle PTQ, PTQ, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यू नो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, हमारे पास सिंपली कितना होता है, 360 होता है। 360 में से 180 तो ये निकल गया, ठीक है। तो पीछे बचा 180 में से 110 इसको चला गया, तो पीछे कितना रहेगा, 70। सो यू कैन इजीली रिमेंबर, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है और जो सेंटर में एंगल होता है, दैट बोथ आर सप्लीमेंट्री। कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस दैट बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल PTQ कितना देगा आपके पास, 180 माइनस POQ दैट इज 110, तो आपके पास 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा B यहाँ पे आपके पास, ठीक है। सो ये था आपका आंसर 2। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका या नोट डाउन करिए, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा सब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अगेन एक MCQ है, जिसमें कहता है हमारे पास, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then find the angle POA। तो सिंपली आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो आपको एक पॉइंट लेना है P, इससे दो टेंजेंट बनाने हैं इस पे, ठीक है। और यहाँ पे बनाते हैं हम लोग सेंटर में एक हमारे पास रेडियस, आपको बताया था रेडियस जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री बनाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू फाइंड, एंगल POA। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। टोटल एंगल आपको गिवन है, टोटल ये पूरा का पूरा एंगल कितना हमारे पास, ये पूरा एंगल आपके पास 80 डिग्री है। अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम में आपको बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। तो बाय CPCT ये आपके पास 40 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास सिंपल ये है, या दूसरा तरीका आपके पास ये है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल आपके पास कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो अगर ये 80 है तो ये आपके पास क्या रहेगा, एंगल AOB इक्वल्स टू
180 माइनस 80 दैट इज 100 हो जाएगा, ठीक है। और रिमेंबर जो एंगल POA होगा वो इस 100 का हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये वाला भी 50 हो जाएगा, ये वाला 50 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना था हमारे पास 100, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, RHS से हमारे पास क्या होते हैं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट होते हैं, तो कॉन्करेंट होने से टोटल एंगल 100 मिला, तो 100 में से 50 यहाँ चला गया, 50 यहाँ चला गया, तो एंगल POA कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 ऑफ 100 दैट इज 50 डिग्री। सो काफ़ी सिंपल था ये। सो ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज़ पे आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आई विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या कहता है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो आपके पास क्या है, गिवन है आपके पास दो टेंजेंट्स, ठीक है, दोनों कहाँ ड्रॉ किए मैंने, डायमीटर के एंड पे, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो आपको दो टेंजेंट बनाने जो कि एंड ऑफ द डायमीटर में, तो आपको ये डायमीटर दे रखी है AOB इज अ डायमीटर एंड दिस इज योर टेंजेंट PQ, दिस इज योर टेंजेंट XY। तो गिवन क्या हमारे पास, अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, एंड PQ एंड XY आर two tangents, also AOB is diameter। So ये सब गिवन आपको, ओके। टू प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है आपको XY is parallel to PQ, this you have to prove। सिंपल छोटी सी थ्योरम है हमारे पास, ये प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। एंगल दिस वन, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, वाई, because radius at the point of contact is perpendicular to the tangent, ठीक है। सिमिलरली ये जो नीचे वाला एंगल होगा that is also 90, तो एंगल सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन विल बी सेम। टेक द अबव इक्वेशन एज 1 और नीचे वाली इक्वेशन को नंबर 2 ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर दोनों कंपेयर किया जाए, यू विल गेट फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों के दोनों एंगल्स कर देंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, विच आर ऑल्टरनेट एंगल्स, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस इंप्लाइज XY is parallel to AB, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया। सो हमने बेसिकली किया क्या, हमने ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, और जब भी आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, सो दैट मींस लाइंस विल बी पैरेलल। तो सिंपली मैंने क्या किया, सबसे पहले रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो XY एक टेंजेंट था, OA रेडियस था, तो एंगल 190 हो जाएगा। सिमिलरली PQ टेंजेंट था, OB रेडियस था, तो हमेशा रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर, तो एंगल 2 भी 90 हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 90 हो गए, तो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों एंगल्स कैसे, हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और जब भी आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो लाइंस हमारे पास क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थ्योरम थी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग वीडियो को एंड अप करते हैं यहाँ पे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यूँ ही वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।